Please have a seat, sir. Please have a seat. Of a new initiative from Gleneagles Hospital. We are planning to start a center for prevalent all over the world and also in our country. We run a kidney foundation called Narmada Kidney Foundation, and we do regular screening camps, and in our screening camps we find that the prevalence of high blood pressure is to the tune of 40% in adult population. So we screen all individuals above the age of 18 in various organizations, residential societies, clubs, and we find that 40% of the adults are hypertensive. And what is most disturbing is that 50% of these hypertensive people did not even know that they had high blood pressure. And high blood pressure is one thing which is preventable, and if it is not preventable, it is controllable. A common problem that we find in our clinical practice is that when one is found to have high blood pressure, then he or she is put on blood pressure medicine, which they will take for a few days. Because this is a silent problem, gives you no symptoms, they stop medicines, they never check the blood pressure again, and they continue to remain with high blood pressure for God knows how many years. And then one day, they will present with a sudden heart problem, or they will present with advanced kidney disease, or they may present with brain hemorrhage and stroke. So a simple problem which can be prevented and which can be controlled. Controlling blood pressure is not as difficult as controlling diabetes. All that you need is a proper evaluation and, if required, diet modification, a little lifestyle modification and tablet. So everyone with a problem of high blood pressure must be evaluated, and because many times people are asymptomatic, they ignore this. So what I tell them, when you have high fever, what do? They will take paracetamol as a symptomatic treatment, but high fever can be due to different causes. So you will try and find out the cause. In the same way, if you have high blood pressure, you must try and find out what is the cause. If you find out the cause and you treat that, you may completely get cured. And if you cannot find out the cause, then it is usually multifactorial. Maybe hereditary predisposition, your lifestyle, high intake of salt, and by modifying this, you can control it without any medication. And despite these changes, if you can't control, you may need to take a medicine which will take care of your blood pressure. Now one must remember that every medicine may have some side effects, but if the benefits are huge, one should not think about the side effect. There is a misbelief that all alternative treatments have only beneficial effects and no side effects. My main suggestion to everyone is never to take a medication about which you do not know the composition, about which the effects and side effects are not known. Just do not be under a wrong concept that any alternative treatment is only beneficial and that it has no side effects. So this is a message that I would want to give on our day of setting up the Center for Prevention and Control of Hypertension. BP 365? Yes. Thank you. ASPA Bandewal.
आज बड़ा दिन है हमारे लिए ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल में। हमेशा हम आपको बुलाते हैं कि हमने ये ट्रांसप्लांट कर दिया, ये नई सर्जरी कर दी, बहुत बड़े बड़े चीज़ें की है। बट आज एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, और जो हर डॉक्टर, आप कहीं जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ या फिजिशियन के पास जाओ, आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करता है, ठीक है। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना ही होना चाहिए या इतना ही रहता है और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं जो ट्रीटमेंट पे हूँ वो सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने प्लस मेट्रॉनिक कंपनी ने मिलकर एक मुहिम चलाई है अभी, जिसमें हम चाहते हैं कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं कि ब्लड प्रेशर जो है एक साइलेंट किलर है, हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है, जो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को, जो मेन ऑर्गन्स है, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, इस पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए, मतलब लोग कहेंगे आपको कि आपको सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होगी, बट कोई चीजें तो ऐसी है कि जिसको आपको इलाज करना जरूरी है। ट्रीटमेंट इज असेंशियल, और ट्रीटमेंट अगर सही जगह पे और सही टाइम पे लिया जाए, प्लस ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग रेगुलर हो, तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है। और हमारा जो अभी ये प्रयत्न है वो यही है कि ये एडवांस्ड हाइपरटेंशन क्लिनिक के माध्यम से हम लोगों में ये जागरूकता फैलाए कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ये आपका काम है, और इसके लिए ग्लेनिगल्स आपके साथ है, मेट्रॉनिक आपके साथ है, और हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे उतना ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा सबको। बहुत सारी चीज़ों का जो परिणाम है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, वो हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। यहाँ पे एक मुद्दा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एवं पेशेंट्स भी ये पता नहीं होता उनको कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, उसको किस तरह से मापना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोगों में, अब हमने ये सोचा है कि आपके माध्यम से और पूरे मतलब ये क्लिनिक के माध्यम से हम जन जागृति फैलाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की ये भ्रांतियाँ कम हो। और मुझे लगता है कि इसमें जो बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर्स का रहा है, डॉक्टर राहुल गुप्ता है, डॉक्टर प्रशांत राजपूत है, डॉक्टर भारत शाह है, इन्होंने बहुत मेहनत करके एक प्रोग्राम और प्लान किया है। मुझे लगता है आप लोगों का इसमें सहयोग होना काफी जरूरी है इसकी जागरूकता फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। आई थिंक कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा। 10 मिलियन डेथ्स एनुअली हाइपरटेंशन की वजह से होती है, और जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। अब इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके सिम्टम्स नहीं होते जब तक कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए। और अगर हम हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसको सही समय पे अगर हम ट्रीट करें तो हम लोग डायलिसिस प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज किडनी फेलियर प्रिवेंट हो जाएगा। हम लोग हार्ट फेलियर प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डिसेबलिंग हो जाता है। तो ये तीनों चीजें जो बहुत ही डिसेबलिंग डिसीजेस हैं, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट्स इन सारी चीजों से बच सकता है। अब दूसरा एक बहुत डेंजरस स्टैटिस्टिक्स है कि 3 में से 1/3, मतलब अगर हम इस रूम का कैलकुलेशन करेंगे, हर तीसरा भारतीय हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, मतलब उसको हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन सबसे दुखद बात है कि 50% लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने चेकिंग ही नहीं कराई। अब जो 50% लोग ट्रीट होते हैं उसमें से सिर्फ लगभग 40-50% लोग ही, जो हमारी टारगेट वैल्यूज हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए, उतने ही लोगों का होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज के देश में, आज की जो हमारी सोसाइटी है, उसमें यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, किडनी फेलियर्स हो रही है, स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत डेंजरस लेवल पे सिचुएशन पहुंच गई है, जहाँ पे काफी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और ये बहुत कॉमन हो गया। आपने सेलिब्रिटीज में देखा है, आपने स्पोर्ट्स पर्सन में देखा है, आपने बहुत बड़ी लोगों में देखा है जो इन चीजों से परेशान होकर हार्ट अटैक से एडमिट हो रहे हैं। तो इसका रीजन यही है कि साइलेंटली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे बॉडी में काम करते रहते हैं और उनका पता नहीं चलता है। तो जब जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ दी, जैसा सर ने भी बताया, वर्षा सर ने, कि ये बहुत प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन इसकी जागरूकता नहीं है। तो ये एडवांस हाइपरटेंशन सेंटर का एक जो कॉन्सेप्ट है, काफी दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा था, और इसको सामने लाने का रीजन ये है, जो डिफिकल्ट टू ट्रीट ब्लड प्रेशर है, जिनको 3-3, 4-4 दवाइयां चल रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उनको दोबारा स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। अगर किसी को एक बार स्ट्रोक हो गया, उसमें से वो बच गया है, या हार्ट फेलियर हुआ है, वापस से नहीं होना चाहिए, या किडनी क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हो गया है, जो किडनी डिसीज का एक इंडिकेटर है, वो वापस से
सीवियर किडनी फेलियर में नहीं जाना चाहिए जहां डायलिसिस लगे, तो ऐसे व्यक्तियों का सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उन्हें सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसीलिए ये एडवांस कार्डियक सेंटर का एक इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जबकि ब्लड प्रेशर सभी जगह ट्रीट होता है, लेकिन इसको सही दिशा देके एक एल्गोरिदम के माध्यम से सही ट्रीटमेंट हम लोग अपने पेशेंट्स और मरीजों को दे सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया 50% लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, तो हमारे एक्शंस में ऐसे भी होने वाला है कि जो यहाँ पे एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर विपिन सर ने काफी उसमें सहयोग दिया, और उन्होंने कहा भी कि जितने भी जो मरीज के साथ लोग आते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए वेट कर रहे हैं, जो लॉबी में वेट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनका हम फ्री चेकअप करके उनका स्क्रीन करेंगे एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो लोग 50% जिनको पता भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग भी डायग्नोसिस कर सके और उनको मार्गदर्शन दे सके। तो ये इस सेंटर के और भी सारे एक्शन रहेंगे जो बाकी लोग बोलेंगे, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for the opportunity. Whatever I wanted to speak in English has already been spoken in Hindi. So, this is when you go forth on a dais which are such distinguished people, you really don't have much to say. So I'll keep it short. First of all, I'd like to kind of really congratulate the visionary leadership of Gleneagles Hospital. Dr. Bipin said that this may not be as complex as possibly a transplant, which you may have heard at this hospital earlier, but also as told by every distinguished speaker before me, it impacts millions and millions of people. It remains undiagnosed, and resistant or untreated hypertension can have really damaging consequences. It can impact your brain, you could have stroke, it could impact your kidneys, you may need dialysis. It could actually cause heart failure, and people don't think about it. We were just talking in a conference room before coming here into this auditorium. Everybody feels, मेरे को तो नहीं होगा, मेरा तो सब ठीक ही है, मेरा बीपी तो इतना रहता ही है. We all have made it a practice, unfortunately, to ignore it. So when we look at Medtronic, and I would also like to congratulate my colleagues and team members here, so I partnered with Gleneagles to come with this partnership. Our mission globally can be defined in 6 words: alleviate pain, restore health, and extend life. In Gleneagles, we have found a partner which shares the same vision. And we want to collaborate to do 2 or 3 things. One, to build awareness about hypertension. Without awareness, no action can be taken. The second thing what we want to do is introduce newer advanced technologies and train physicians in those advanced technologies like renal denervation. And third would be to have a multidisciplinary campaign where each patient is able to access and is given the best possible treatment which actually avoids all the complications that have been talked about. So on behalf of Medtronic, it is both a pleasure and a privilege to partner with Gleneagles Hospital, and thank you Dr. Bharat, Dr. Bipin, Dr. Rahul and everybody else on the dais who have given us this opportunity, and we really believe that this can create a very meaningful and long-lasting impact towards the health of the nation. Thank you. I really look forward to this opportunity. Thank you very much, sir. धन्यवाद। ब्लड प्रेशर कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली हमने यही देखा है कि ब्लड प्रेशर जो इंसान की उम्र बढ़ते जाती है, और ये ब्लड प्रेशर एक सर्टेन उम्र के बाद जब आपकी शादी होती है, और शादी के दूसरे दिन से ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ देखा गया है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बेसिकली ये उम्र की वजह से एक मेजर इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो ट्रेंड है ब्लड प्रेशर का ये अभी चेंज हो चुका है। पहले ज़माने में आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता था, लेकिन आज हम यही देख रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है ये कम उम्र के लोग, इवन कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग एज ग्रुप में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा गया है। तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो हम सोच रहे हैं ये क्लिनिक के बारे में, ये क्लिनिक का ज़रूरत क्यों है?
सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बराबर, तो कैसा मेथड होना चाहिए, ये मेथड बहुत करेक्ट वे से अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो सही ब्लड प्रेशर क्या है या सूडो हाइपरटेंशन क्या है ये आपको पता लग जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर आप सही तरीके से चेक करेंगे, उसके कुछ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से एक स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स, जो मेरे हिसाब से इंडिया में फिलहाल तो भी सही तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो करेक्ट वे से ब्लड प्रेशर चेक करे एज पर दी ACC गाइडलाइंस। तो ये क्लिनिक के द्वारा हम यही कोशिश करना चाहेंगे कि सही ब्लड प्रेशर चेक कैसे होता है। जैसे आपको 15 मिनट रूम में अकेले बैठना है, आधा घंटे कुछ खाना पीना नहीं है, ब्लड प्रेशर के वक्त आपका जो पैर है, जो मैंने जानबूझ के ऐसे फोल्ड करके रखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा बैठ के आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बोलना नहीं है, ओके। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसमें ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपको 3 रीडिंग लेनी है ब्लड प्रेशर की। कोई मुझे बताएगा कि आपका कभी 3 रीडिंग हुआ है? मैं बोलता हूँ नहीं, कोई डॉक्टर ने अभी आज तक 3 रीडिंग लेके पहला रीडिंग डिस्कार्ड करना है, सेकंड और थर्ड रीडिंग का एवरेज लेना है। तो सही तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना और सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना और उसके पश्चात उसका सही तरीके से निवारण करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है जिसको हम ये क्लिनिक के द्वारा सारे जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं और जो सेंटर्स हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करें, इंक्लूडिंग जनरल प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट, तो सही तरीके से ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है और उसका जो घर पे ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है। अगर आप घर पे हो और आपको ब्लड प्रेशर लेना है, आपकी मशीन का कैलिब्रेशन कैसे होता है, तो ये क्लिनिक के माध्यम से हम ये जन जागृति है ये फैलाना चाहते हैं। और इसके वजह से न केवल ब्लड प्रेशर चेक होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको ट्रैक करना। एक बार ब्लड प्रेशर आपको पता लग गया कि ब्लड प्रेशर है, 2 बार आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, अगर गोली खा रहे हैं तो वो उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं, उनको वो एक मूवी आया था, देखो कौन सा था वो, आमिर खान सब भूल जाता है, गजनी। तो ये गजनी का इफेक्ट हो रहा है कि लोग ब्लड प्रेशर की दवाई तो ले लेते हैं, लेकिन अगले 10 साल तक उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं देखा। उनको लगता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर 160/90 है, ये चलता है और वो चलता है कि वो चलते ही जाता है और एक दिन वो इमरजेंसी में यहाँ पे हार्ट अटैक या स्ट्रोक करके या किडनी फेलियर करके आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को सही उसका नाप करना, उसका सही आगे का ट्रीटमेंट करना, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग और फॉलो अप, और अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस के लिए आपको जाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। तो अल्टीमेटली ये जो बीपी का जो हमने क्लिनिक का नाम दिया है BP 365, बीपी ना केवल एक दिन का चीज है। वंस यू आर हाइपरटेंसिव यू शुड ऑलवेज चेक योर ब्लड प्रेशर, एंड ये बहुत जरूरी होता है अगर आपको लंबी उम्र चाहिए। अगर हमको 100 साल की उम्र तक जाना है तो हमको ब्लड प्रेशर ये 365 डेज चेक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर दवाई लेने के बावजूद भी ज़्यादा रहता है, तो आपको प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है, जो हमारा सेंटर है, उसको कंसल्ट करना है। और जब आप सेंटर में आएंगे, जब हमने पता लगा लिया ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, मतलब 3 दवाई के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो अप्रोप्रिएट उसके लिए इंटरवेंशन या दवाइयाँ देके उसको कंट्रोल किया जा सकता है और ये चीज़ से लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। तो ये क्लिनिक का उद्देश्य है। धन्यवाद। Thank you, sir. So, as Dr. Amrita said, that lot of people are not aware that that they have blood pressure and how much is it or whatever. So initially we start from the hospital itself. आज हॉस्पिटल में ही इतने सारे पेशेंट हैं और पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं। इस हॉस्पिटल में डेली कम से कम 500-600 लोग आते हैं। So I think we'll start from here, okay, and then we'll reach out to the communities. So reach out to the communities में बहुत सारी सोसाइटीज़ है आसपास, बहुत सारे जो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं संस्था, उनके पास जाएंगे, पूरी स्क्रीनिंग करेंगे। We'll have a database, okay, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये करके ख़त्म करना है। आई थिंक ये मूवमेंट है।
ये शुरू होगा और आस्ते आस्ते ये जोर पकड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये नहीं है कि हमको पेशेंट को एक चीज के लिए लेके आना है यहाँ पे और ट्रीटमेंट करके छोड़ देना है। इट इज अवेयरनेस कैंपेन विच यू वांट टू क्रिएट एंड इट विल बी एंड्योरिंग। मुझे लगता है ये लंबी समय तक चलेगा। इसमें इसलिए हम आप लोगों की सहायता चाहते हैं ना कि ये आज का उद्देश्य नहीं है हमारा, यू नो, दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग for which everybody should be helping us. और CSR का मतलब ये नहीं है कि मतलब we are donating something to do whatever. It is our responsibility to take care of society, being a hospital, being a healthcare institution. So that's why we are tying up and we are making sure that it reaches maximum people. Sir, what will be your message to the youth like to come forward for this screening? Basically, important is to bring them to the this hospital or for the screening. Basically. So, जैसे हम लोगों ने कहा, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि ब्लड प्रेशर है, so all these awareness things, so we have also planned to conduct awareness sessions in and around the society. Hospital में there would be standees or there would be some kind of awareness on the TV or all, which we will promote patients and we would have a counselor who would be there around to help people to measure their risk factors along with the blood pressure. And also all of us, like we are 3 cardiologists who are sitting over here, we have nephrologist team who are sitting over here. We are going to conduct very regularly awareness programs in the societies and all, where there will be a free checkup along with the other talks and health talks. So this is what a small bit which we can do for the society by improving the awareness and checking them so that they can take the appropriate treatment. So I think we will be able to this way channelize a lot of patients. Early treatment can actually save them from kidney failure, heart failure and brain stroke. So this is what is our aim is, which which is happening in the society. So we won't be treating those who have already suffered, they automatically come to the hospital. But those who have not yet suffered, we want them to prevent them from having these diseases. So that's the aim. So through a lot of awareness activities this will happen. सर BP 365 क्लिनिक के माध्यम से जो भी फैसिलिटीज देने जाने वाले हैं, तो क्या ये मुंबई में फर्स्ट टाइम लॉन्च की जा रही है या वाज इट प्रीवियसली अवेलेबल? So this is a first time concept. So concept has been there. ये इस तरह के concepts कई लोग सोचते हैं मन में, लेकिन हम लोगों ने इसे लॉन्च कर दिया है क्योंकि इसमें हर तरीके के, अभी हम लोग यहाँ पे कम लोग हैं, बट इस पूरे BP 365 में कार्डियोलॉजिस्ट तो है ही, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट है, हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हार्मोन के डॉक्टर्स रहते हैं, लंग्स के डॉक्टर बिकॉज स्लीप एपनिया भी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कॉज करता है, न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स बिकॉज स्ट्रोक करता है। तो ये हमारा, इसके पहले हमारा एक सॉफ्ट लॉन्च हमने आपस में किया था जहाँ पे हम सारे कंसल्टेंट्स साथ में आए थे। तो जो डिफिकल्ट टू ट्रीट ब्लड प्रेशर्स हैं उनके लिए क्या कारण है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हार्ट की वजह से भी हो सकता है, किडनी की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, लंग्स की वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं। तो ये हम सारे कंसल्टेंट्स अवेलेबल रहेंगे आफ्टर स्क्रीनिंग किस डायरेक्शन में जाना है। और हमारे पास एडवांस थेरेपीज भी अवेलेबल रहेंगी जहाँ पे पेशेंट्स को बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ सूट नहीं हो रही हैं या फिर दवाइयाँ खाने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो जो हाईली एडवांस थेरेपीज है उनका प्रयोग किया जाएगा ताकि पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये स्टेप वाइज है। करेक्ट डायग्नोसिस, पहले जैसे डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि सही तरीके से जांच करके ब्लड प्रेशर है या नहीं है। सेकंड इज ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सारी चीजों को करना, सही दवाई देना, उसके बाद भी अगर तकलीफ है तो एडवांस थेरेपीज का प्रयोग करना, जिसमें से एक थेरेपी रीनल डीनर्वेशन थेरेपीज है और भी इस तरह की थेरेपीज है जो यहाँ पे सेंटर में उपलब्ध रहेंगी और इनका प्रयोग किया जाएगा पेशेंट्स को के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। Sir, can you tell us more about this therapy, this center, and what are the different ways of, when you mentioned that there are 3 types of readings which we were not aware of. 3 types of BP reading, right? So we were not aware of. So can you tell us more about how this center is going to work and what are the therapies? What the blood doctors check is they check the only one BP reading. Okay, so that is not the correct way to check the blood pressure. So the first reading could be a reactionary high blood pressure. So that can be a false alarm. So जो second और जो third reading होता है, the first reading you have to ignore that first reading, and second and the third reading का average जो होता है that is the correct way of taking blood pressure. Suppose इसमें और 2 चीज हो सकते हैं कि suppose कोई मरीज है जो हॉस्पिटल आ रहा है और डॉक्टर को देखते से ही, व्हाइट कोट देखते से उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको व्हाइट कोट फिनोमेना बोलते हैं, और घर जाके जब वो घर जाता है तो ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाइट कोट डिजीज।
और ये वाइट कोट फिनोमेना है, उसको हम 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से ये हम देख सकते हैं। तो उनको एक मशीन लगा देते हैं और ये 24 घंटे प्रेशर चेक करते रहता है। तो जब वो हॉस्पिटल में रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जब वो घर जाएगा तो उसका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ऐसे मरीजों को जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं ये अवॉइड कर सकते हैं, उनको बिल्कुल ये ज़रूरत नहीं होती है। एक दूसरा कंडीशन होता है उसको मास्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। मास्ड हाइपरटेंशन ऐसा होता है कि जब वो हॉस्पिटल में है ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई दवाई का जरूरत नहीं है। जैसे वो घर पहुंचता है या अपना काम करते रहता है, बॉस को देख के या बीवी को देख के ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये पेशेंट को बिल्कुल दवाई का जरूरत है। तो ये मास्ड हाइपरटेंशन होता है और ये हमको कब पता लगेगा, जब हमको उनका 24 आवर एम्बुलेटरी हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। कई और मरीज होते हैं जो काफी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं और सिंपल चीजें होती हैं, जैसे उनका स्लीप एपनिया चेक करना या उनका स्लीप एबनॉर्मल होता है। सिर्फ अगर वो रात को बहुत खराटे लेते हैं और दिन में सोते हैं तो और बहुत थोड़ा मोटापा है, इंडिया में मोटापे की भी जरूरत नहीं है, और वो बैठे बैठे कभी सो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और सो गए, तो अगर ऐसा कभी होता है दैट इज कॉल्ड एज स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर का। इसको आइडेंटिफाई करना और उसको ठीक करना एक सिंपल वे होता है जिसे हम कर सकते हैं। तो कई सारे मरीज होते हैं जो सालों साल एक ही दवाई का पर्ची लेके घूमते रहते हैं। हम काफी देखते हैं कि ऐसे मरीजों के लिए जिसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है और उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं रहता है और बिल्कुल उनका सारा जो ध्यान रहता है वो खाने पीने में, वड़ा पाव, भजिया पाव और बराबर ना, और वो सारा उनको बोलते हैं कि मुझे कुछ होता ही नहीं है, मैं 4 दवाएं लेता हूँ, चलता है। तो ये चलता है एटीट्यूड, उसको रोकना है, तो आइडेंटिफाई करना है उसको। अगर 3 से ज्यादा मेडिसिन लग रही है तो क्यों लग रही है, अगर उसका सॉल्ट इंटेक ज्यादा है तो सॉल्ट पे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है फोकस कि हमारा जो सॉल्ट इंटेक है नॉर्मली नॉर्मल इंसानों ने कितना सॉल्ट खाना चाहिए, 5 ग्राम सॉल्ट, ओके, तो लेस देन 5 ग्राम वी हैव टू टारगेट। तो अगर हम सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं, अगर हमारे खाने में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है पता है, तो ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ेगा? तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा। और ऐसा देखा गया है हमारे स्टडीज में, और हम नर्मदा किडनी फाउंडेशन और हमारे जो डोनर्स होते हैं उनके हम यूरिन चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा जो एवरेज सॉल्ट इंटेक है ये 15 से 20 ग्राम है, तो विच इज वेरी वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ इंटेक ऑफ सॉल्ट। जो हमको 5 ग्राम खाना चाहिए हम उसको 15 से 20 ग्राम खा रहे हैं, सारा जंक और पैकेट फूड्स के वजह से, और ये हमारा ब्लड प्रेशर होने का बड़ा कारण है। अगर हम हमारा सॉल्ट इंटेक कम करें तो जिन लोगों को कई सारी दवाइयां लगती थी मे बी उनको एक दवाई से काम चल सकता है। तो ये सारा जो मैसेजिंग है जो समाज में जाना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर सही तरह से आइडेंटिफाई हो। जिन लोगों को मास्ड हाइपरटेंशन है या वाइट कोट हाइपरटेंशन से, वो मरीज अननेसेसरी मेडिसिन ना ले, या जिसको जरूरत है वो बराबर से ले, सही दवाइयां ले। बहुत बार जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको ब्लड प्रेशर में कौन सी पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, 40 ईयर ओल्ड यंग पेशेंट जो एथलीट है उसको अलग दवा चलेगी, 80 साल की उम्र को ब्लड प्रेशर की अलग अलग दवा चलती है। तो ये जो जन जागृति होती है, जो फिजिशियंस और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको समझाना या उनको सिखाना, ये भी ये क्लिनिक का ये होने वाला है। तो इन जनरल फोकस यही रहेगा कि सही तरीके से ब्लड प्रेशर, सही इक्विपमेंट यूज करें। और कहीं अभी हमारे पास एक पेशेंट आई थी जो 22 इयर्स ओल्ड, और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पोटेशियम बहुत कम था, और उसको ट्यूमर था एड्रिनल ग्लैंड में। तो आइडेंटिफाई हो गया, हमने उसकी टेस्ट करी और वो ट्यूमर हमने निकाल दिया और उसका ब्लड प्रेशर क्योर हो गया। तो जिसको हम इंडोक्राइन हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये सारे जो मरीज हैं जो अननेसेसरी मेडिसिन पे हैं, ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाए और सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट करें। ना केवल वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से निकल भी सकता है। तो यही ये क्लिनिक का बनाने का रीजन है, जिससे अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन और कंप्लीट ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर की जो कॉमन जनता है उनको मिल सके।
sir, you mentioned कि 3 times the readings होते हैं. So what are these 3 types? Three readings. 3 readings. Three readings. First you have to ignore. Second and third you have to What is average. the gap between these 3 readings? Usually you can take it after 1 minute. And the patient has to be sitting. So there are ways. तो if you go to the website, we will be, जो हमारे क्लिनिक होते हैं वहाँ पे हम हर पेशेंट को एक सही तरीके से ब्लड प्रेशर कैसे लिया जाता है उसका एक चार्ट देंगे जिससे वो सही तरह से उसको प्रॉपर करें और वो रीडिंग अगर सही तरीके से लिए गए तो उस पर प्रॉपर जो इंटरवेंशन होता है वो कर सकेंगे. अगर उसमें कोई दवाई बढ़ाना है दवाई घटाना है वो एवरेजली जब आप सही तरीके से प्रेशर चेक करेंगे तो ही आपको पता लगेगा. सर आप ही ने कहा कि डॉक्टर एक बार चेक करता है बीपी, 3 बार करना चाहिए, तो डॉक्टर क्यों नहीं करते? उनको पता ही नहीं होता है कि 3 बार होना चाहिए. नहीं पता है तो पेशेंट को ऐसा पता चले. हाँ, तो उसके लिए पेशेंट को भी बताना जरूरी है, डॉक्टर को भी सिखाना जरूरी है. तो ये क्लिनिक इसलिए किया गया है कि सिंपल चीजें जो है अगर हम करें सही तरीके से ब्लड प्रेशर ले तो इसका समाज में जो इफेक्ट होगा ये काफी बड़ा होता है. अगर हम सही तरीके से ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेंगे तो कई सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत है उसको मिलेगी और जिनको जरूरत नहीं है वो सब निकल जाएंगे. एक शॉर्ट में सिर्फ मैं बता देता हूँ, जैसे अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो 3 बार लेने की जरूरत नहीं है. सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहला ब्लड प्रेशर ज्यादा आ गया तो हम लोग सेकंड और थर्ड रीडिंग को ले सकते हैं जिन लोगों में आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग अलर्टिंग रिस्पॉन्स होता है. तो कई बार ज्यादा आता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करके शांत करके सेकंड और थर्ड रीडिंग ले लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सबको लेने की जरूरत है. जहाँ पे ज्यादा आ रहा है हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे और ज्यादा आ रहा है तो वहाँ पे इस तरीके से. और ये सारी चीजें बताने का जो रीजन है कि इस क्लिनिक में जो सबसे छोटी से छोटी बातें रहती है, जैसे अगर टाइम का हम लोग देखें तो माइक्रो सेकंड एक यूनिट होता है, तो ये छोटे से छोटे जो माइक्रो मैनेजमेंट वाली बातें हैं इस क्लिनिक में, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो इतना कॉमन है, जनरल प्रैक्टिशनर भी ट्रीट करते हैं, फिजिशियन भी ट्रीट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी करते हैं, सब लोग करते हैं. तो इसमें खासियत क्या है? तो खासियत इसमें यही है कि जो छोटी से छोटी बातें हैं एविडेंस बेस्ड हैं, जिनका बहुत ठोस सबूत है कि ये इस तरीके से करना चाहिए, उन चीजों को हम लोग अपनाने वाले हैं, जो अपना रहे हैं इसमें. और हम लोग इसकी अवेयरनेस डॉक्टर कम्युनिटी में, पेशेंट कम्युनिटी में, ताकि ब्लड प्रेशर हम लोग वी हैव बिकम वर्ल्ड कैपिटल फॉर सारी बीमारियां जितनी भी है. हार्ट डिसीज के हम वर्ल्ड कैपिटल है, डायबिटीज के वर्ल्ड कैपिटल है, हम हाइपरटेंशन के वर्ल्ड कैपिटल है, हमारी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, हमारे पास यूथ भी सबसे ज्यादा है. तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइम टाइम है हमारे यूथ का, इन बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए और इन बीमारियों का सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट होना चाहिए. इस एडवांस हाइपरटेंशन सेंटर का ट्रीटमेंट मरीजों के लिए तो है ही, और ये अवेयरनेस एक्टिविटी हमारे जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्क्लेव्स हैं, वो सारी चीजों में किया जा सकेगा. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो लेडी का ट्यूमर निकाल दिया और उसका ठीक हो गया, उसी तरीके से हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसको 5-6 दवाइयां चल रही थी, बीपी 160/100 था. तो अब सारे जांच करवा लिए, कोई दूसरा कारण नहीं मिल रहा है, बीपी बहुत ज्यादा है. तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है कि बीपी की दवाइयां भी ले रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है. तो हम लोगों ने उनके केस में रीनल डिनर्वेशन थेरेपी यूज किया, जो बहुत ही सिंपल और एकदम इफेक्टिव थेरेपी है. जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उसी तरीके से हमने वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी, किडनी की जो आर्टरीज रहती हैं उसके आसपास सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो हाइपर एक्टिव होती हैं, तो उनको हमने नम कर दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी से, उनका तुरंत ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया. तो कहने का मतलब ये शायद बातें आपने सुनी भी ना होगी, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरीके से पेशेंट्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करके उनको सही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. एक 30 ईयर ओल्ड लेडी आई थी जिसका ब्लड प्रेशर 10 डॉक्टर को दिखा दिया था, उनका कंट्रोल ही नहीं होता था और पेशेंट घूम रहा है. फिर किसी ने भेजा हमारे पास और मैंने देखा कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ट्यूब होती है, हार्ट से जो निकलता है, आयोटा बोलते हैं, तो उनके आयोटा में बचपन से कंस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था. तो हम लोगों ने हार्ट टीम में डिस्कशन किया और उस आयोटा में हमने स्टेंट डाला, उनकी सारी की सारी दवाइयां बंद हो गई. तो ये सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जो एडवांस सेंटर्स में जांच पड़ताल करके सही तरीके से देख के, जिस पेशेंट को, तो पेशेंट तो 10 डॉक्टर को दिखा रहा था बट किसी ने वो रेयर कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया. तो जो रेयर कॉजेज के साथ लोग घूम रहे हैं, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको हम लोग जांच करके सही दिशा दे सकते हैं. यही हम लोग एक डेवलप करने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने मेट्रॉनिक कंपनी के साथ एक गठजोड़ किया है, जिसके माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन जो है ये साइलेंट किलर है और हाइपरटेंशन के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है. और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये
BP 365 नाम से ये क्लिनिक शुरू किया है, विच विल ओनली वर्क फॉर एडवांस हाइपरटेंशन। इट विल वर्क एज एन एडवांस हाइपरटेंशन क्लिनिक, जिसमें हम जन जागृति फैलाएंगे, पेशेंट्स का डायग्नोसिस करेंगे और उनको सही जो दिशा है वो दिखाएंगे कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, और जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करेगी। इसमें हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, हर कोई काम करेगा। और हम चाहते हैं कि इसको एक मूवमेंट की तरह लिया जाए, कि ना ही खाली क्लिनिकल्स करें, बट सारा जो मेडिकल समाज है वो भी इसमें आए, ताकि हम हाइपरटेंशन के लिए जो है जागरूकता फैला सकें। सर ये यूथ के लिए आजकल डायग्नोस रहता है और क्या मुहिम चलाएंगे जिससे यूथ को फायदा हो, यूथ सामने आए और इस मुहिम से आगे बढ़े, अपना टेस्टिंग करे, डायग्नोस करे, राइट, और ट्रीटमेंट आप दे सकें। ढालो लगा है कि ये मूवमेंट हम करता है माइक वरती हमारी आशा है कि ये अवेयरनेस सब जगह पे, सब मेडिकल सेंटर में हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने से इसका ब्लड प्रेशर जल्दी से डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये हमारा होप है कि हमने स्टार्ट किया है, लेकिन सब मेडिकल सेंटर में ऐसा एफर्ट होना चाहिए। सर यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आगे आए और इस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े और अपने आप को डायग्नोस करवाए? बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो उसका डायग्नोसिस करना चाहिए कि क्यों हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट और कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बेसिक सिम्टम्स या प्रिवेंशन? अनफॉर्चुनेटली ये साइलेंट किलर है, तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया गया और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें उसके लिए फर्दर चेकअप करना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा यूथ के लिए। आपने मैसेज बोला, सर ने तो बताया सारा, कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को अपना ब्लड प्रेशर साल में एक बार चेक करा ही लेना चाहिए। वो सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो उसमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने की में झिझक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोगों का डायग्नोज हो जाता है। जैसा हमने देखा कि 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो जब तक ये चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो सोसाइटी में हेल्थ चेकअप कैंप्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल, क्लिनिकल हॉस्पिटल ने जैसे ये CSR एक्टिविटी के थ्रू सारे मरीजों के जो परिजन हैं उनके लिए चेकअप करने की सुविधा बना रहे हैं हम लोग, तो उसका ये हमको उसका उपयोग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम क्यों चेक कराएं, हमें तो कुछ भी नहीं है, हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, ये मन में इस तरह की दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। अगर हमें मौका मिल रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, और अगर वो ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, जहाँ पे पहले हम लोग लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं, और लाइफस्टाइल फोकस करने के बाद भी अगर पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है किसी का भी, तो ही हम दवाइयों पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव रखनी है और बढ़ानी है तो आपको रेगुलर चेकअप कराना ही पड़ेगा, बिकॉज सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स साइलेंट किलर्स हैं, और इन साइलेंट किलर्स से बचने का एक ही उपाय है, वो है अपने रेगुलर चेकअप करवाना।